کی اصلاح کر لیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے پہلے عورتیں ایسے کپڑے استعمال کریں گی جو پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح سند سے ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی، کیا مطلب اس کا؟ دو طرح ہے، یا تو کپڑا بہت باریک پہنیں گی جس سے اس کی سطر پوشی نہیں ہو پائے گی، اور اگر کپڑا باریک نہ ہو، موٹا ہو، دویج ہو، ایسا وہ چست اور تنگ کپڑا بھی استعمال کرے گی کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز پورے کے پورا نمایاں ہونے لگے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے معاشرے کی حالت اتنی بد سے بدتر ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی بلا ضرورت وہ سر اٹھا کر کے بازاروں میں گھومنا اس کے لیے تنگ ہو چکا ہے، مشکل ہو گیا ہے، یہ برا حال ہو گیا۔ جبکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عورت گھر سے بناؤ سنگار کر کے، پازیب پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے وہ گھر سے نہ نکلے۔ اگر وہ نکلتی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں ہوتی ہے اللہ اس کے اوپر لعنتیں بھیجتا ہے، فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور یہ پوری کی پوری باتیں ہماری ماں بہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بن سنور کر کے نکلنا، اس طرح پرفیوم اور خوشبودار کریم وہ لگا کر کے نکلتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی ہے خواتین کے اندر، یہ خواتین ہی صرف نہیں بلکہ ہمارے مرد حضرات بھی، جہاں پر دو آدمی بیٹھتے ہیں تیسرے کی شکوہ شکایت وہاں شروع ہو جاتی ہے، تیسرے کی برائی بیان کرنا، چغلی کھانا، غیبتیں کرنا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اور ہماری عورتوں کے لیے بھی یہ مرغوب غذا بن چکا ہے۔ چغلی غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ چغلی غیبت کرنے والے کو سب سے پہلے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دفعہ چند قبروں کے سامنے سے ہوا، اس میں سے دو قبر میں دونوں صاحب قبر کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ فلاں اور فلاں کی قبریں ہیں، اور یہ بھی آپ نے معلوم کیا تو ایک کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ پاتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے، جہاں چاہا ایسا چست چونکہ پتلون اور جینس سے پہنے ہوئے بیٹھنے کی تو صلاحیت نہیں ہے، کھڑے کھڑے استنجا کر دیا، اور استنجے کے پورے قطرے اور چھینٹے دونوں پاؤں میں پڑنے لگے۔ استنجا پانی کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں، پھر اس کے قطرات بھی پتلون وغیرہ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ پاتا تھا۔ گویا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹے سے ہم محتاط نہیں برتتے ہیں، ہم نہیں بچتے ہیں، تو سب سے پہلے قبر میں عذاب ہوگا، اور قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ پہلی منزل قبر ہے۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ دوسرا آدمی چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا۔ چغلی غیبت اتنی بری عادت ہے کہ اچھے سے اچھے گھر کو تباہ یہ کر دیتی ہے، اچھے تعلقات دفع برباد ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، چغلی اور غیبت سے جھگڑے ہوتے ہیں، چغلی اور غیبت سے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں، چغلی اور غیبت کی وجہ سے گھر کے اندر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اچھے سے اچھا گھر تباہ ہو گیا ہے اس سے۔
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से दूसरे आदमी को कब्र में इसलिए अजाब हो रहा है कि वो नमीमा करता था, चुगली खाया करता था, गीबतें करता था। और मशहूर है कि चुगली और गीबत में औरतें सबसे ज्यादा पहल में आगे आगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जब आप दो आदमी बैठो, दो लेडीज बैठो, तो किसी तीसरे की गीबत और बुराई ना करो। चुगली और गीबत करने की बहुत बड़ी वईद है, ये सजा है। नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पूछा, क्या तुम पसंद करते हो सूरतुल हुजरात में कि तुम अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? मुर्दे भाई का गोश्त खाना तुम पसंद करते हो? अल्लाह खुद ही जवाब देता है कि नहीं नहीं, तुमको मुर्दा भाई का गोश्त खाना हरगिज पसंद नहीं होगा। तो गोया के चुगली और गीबत को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दे भाई के गोश्त से ताबीर फरमाया है, तो इसलिए उससे भी बचने की शदीद जरूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद, यसअलुका अन्नासु अनिस्साअ, ऐ नबी कह दो कि जो लोग पूछते हो कयामत कब आएगी, आगे अल्लाह कह रहा है कि कह दो कि कयामत का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। और कयामत के ऊपर ईमान और यकीन रखना ईमान का एक पार्ट है। अगर हम कलमा तौहीद शहादत भी पढ़ लेते हैं, नमाज रोज़ा सब कुछ करते हैं, और क़यामत पर हमारा अगर यकीन नहीं है, क़यामत आएगी इसका अक़ीदा नहीं है, तो फिर हम मोमिन नहीं हैं। इसलिए कि चूँकि क़यामत आएगी इसका इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है, और क़यामत यकीनन आएगी इसके ऊपर ईमान लाना ईमान का एक पार्ट है, एक जुज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें आप सबको आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन बुराइयों की तरफ अल्लाह और उसके रसूल ने इशारे फरमाए हैं, अल्लाह हम सबको उससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम मौलाना साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही कारआमद बातें हम लोग को बताई। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाता है। सवाल मुख्तसर हो और जो बातें दर्स के अंदर आई हैं उसके अंदर ही के सवाल हो तो बेहतर है। पहले ख्वातीन सवाल करेंगी, इंशाअल्लाह मौलाना साहब इसका जवाब देंगे। अंदर एक माइक है, उसका इस्तेमाल किया जाए। लेडीज जी अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा सवाल दर्स से मुतल्लिक है। जहाँ तक सूद का मामला है, तो आजकल अमूमन घरों में लोग बैंक में पैसे रखते हैं पैसे की हिफाजत की गर्ज से। तो चूंकि बैंक का दारोमदार तो सूद ही पर टिका हुआ है, तो क्या बैंक में पैसा रखना जायज है या नहीं? और अगर जायज है तो क्या हमको वहां से जो सूद मिलता है तो उसको हम कहाँ खर्च करें कि मेरी आखिरत में पकड़ नहीं हो? अगर बहुत ज्यादा सूद में ये बैंक में रुपये जमा करना जरूरी है, तो आदमी करंट अकाउंट जिसमें सूद नहीं मिलता है, इसमें आदमी रख सकता है, ये उसकी मजबूरी है। और उससे जो सूद आ जाए, बिल्कुल थोड़ा बहुत आता है, तो वो उस ताल्लुक से वो तो चूँकि हराम है, एक हराम हलाल नहीं हो सकता है। तो इससे पहले सऊदी में उलमाए किराम की एक टीम बैठी थी इसी पर तबादला ख्याल के लिए। तो उसमें ये बात आई कि अगर सूद के पैसे को बैंक में छोड़ देते हैं तो वो दुश्मन इस्लाम के खिलाफ उस पैसे को यूज करता है। और अगर दूसरी बात ये कि अगर उस पैसे को हम ले लेते हैं, उसको जला देते हैं, तो कानूनन हम मुजरिम बनते हैं। तीसरी बात कि हम उस चीज़ को अपनी ज़ात पर खर्च नहीं कर सकते हैं, चूँकि खर्च करेंगे तो गोया कि ये हलाल समझ करके हम खर्च करेंगे, इसलिए गुनाह होगा। तो उसके लिए एक रास्ता ये निकाला गया कि किसी ऐसे रिफाह आम में बग़ैर सवाब की नीयत के, मसलन कहीं पर रोड जाम है, नाली जाम हो चुकी है, आने जाने वालों को अजियत हो रही है, तो उस पैसे से नाली साफ करवा दिया, है ना। रास्ता से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको हटवा दिया, कूड़े हटवा दिया, तो उससे सवाब की नीयत नहीं बल्कि रिफाह आम के तौर पर आदमी इस्तेमाल उसको कर सकता है। और कोई सवाल है? हदिया क्या जाए?
जी सवाल ये है कि एक मोहतरमा है जिन्होंने डिग्री हासिल किया है, इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद एमबीए किया है, अपने पर्दे के दायरे में किया है। अब चूंकि डिग्री हासिल कर चुकी है इसलिए मुलाजमत की ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या उनको मतलब नौकरी करना जायज है पर्दे के लिहाज से अगर वो करना चाहे तो? हाँ, पर्दे के अंदर रह करके अगर है मुमकिन तो कर सकती है। आप लोग सामने जो मेरे बैठे हैं अगर कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। माइक बगल में है, सामने रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आजकल माशरे में हमेशा देखा जाता है, हर जगह हर बिजनेस में या हर खरीद फरोख्त में कमीशन मिलता है। क्या वो कमीशन सूद है? कमीशन की वजाहत थोड़ी सी हम करना चाहेंगे। किस तरीके कमीशन? मसलन एक होता है दलाली करना। एक आदमी जमीन का कारोबार करता है, गुफ्त तौर पर खरीदने वाले को जा करके जमीन के बारे में बेजा तारीफ कर देता है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। जब वो आदमी जहनी तौर पर तैयार हो गया तो कहा कि हम आपसे 10% लेंगे। उसी तरह जाकर के जमीन वाले से कह दिया, बेचने वाले को, कि हम आपकी जमीन बेचवाएंगे, बढ़ा चढ़ा करके बेचवाएंगे, लेकिन आपसे हम 10% लेंगे। तो इस तरीके से दोनों को एक दूसरे को डार्क में रख करके अगर कोई आदमी दलाली करता है या कमीशन लेता है तो दुरुस्त नहीं है। खुल करके मेहनताना हम आपसे इतना % लेंगे, दोनों को सामने कर देते हैं जिस पर आप लोग एग्री कर लें। लेकिन हम जो मेहनत किए हैं, खोज खाज करके ग्राहक ले आए हैं और ग्राहक को भी कि खोज करके जमीन आपको निकाल के दे रहे हैं, आप लोग बात कर लीजिए, हम मेहनत के तौर पर इतना लेंगे। तो ये बोल करके लेना दुरुस्त है, लेकिन डार्क में रख करके जो अमूमन दलाली की जाती है ये सही नहीं है। या इसी तरह और दूसरे कारोबार में कमीशन बढ़ा चढ़ा करके